You just walk into a room and you feel different energies. ये है क्या? ये different energies क्या होता है? या why am I feeling so differently in different places? So if you do a scan of the रुद्राक्षा जो आपने खरीदा है या आप रिपोर्ट मंगवाते हो तो what they send you is a scan report. उसमें आपको डॉट्स दिखते हैं कि कितने बीट्स है उसमें. तो जितने मुख है उतने नंबर ऑफ सीट्स भी होने चाहिए उसमें. तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या था? किसके लिए लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स इज योर होल रिकॉर्ड. जैसे आप बोलोगे कि भाई मेरा लाइब्रेरी किधर है, दैट इज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स. आपको लगता है ये पीआर चाहिए फॉर ऑल दिस एनर्जी हीलिंग प्रोसेस एंड स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि आप स्केप्टिक्स को कैसे समझाओगे ये? Welcome, Avancha Krishnamohan sir, to TFM. Pleasure to have you on the show. And you bring expertise in so many areas like marketing, spirituality, healing. So I'm really curious, and I'm sure the conversation is going to be really insightful today. Thank you so much for having me here. Yeah, so let's start with your story. How did you come into this? So very honestly, almost in 2000, my life took a drastic U-turn because 2000 was when I was just playing football and I was a house captain, blue house captain. And while trying to run around with the In ball the school, you in mean? the school, yes. Okay. So I was trying to run around in the school, and I used to collapse kind of. Mhm. And I had shortness of breath, and I was not well. Mhm. So I went home and I told my dad that this is what is happening. He said, "Yeah, we have to get test done." And I was like, "Test for what?" I mean, you collapse, you just don't feel up to it. You just feel careless. Maybe something is just casually wrong. You don't feel that, you have to go for the test. And the test kind of, told me that I have a hole in my heart. My parents knew this, and the hole was a VSD. Mhm. But during that time, I didn't know what kind of a hole it was. And a hole in the heart for a 14-year-old kid, it's, क्या हो गया? मैंने क्या गलत कर Family लिया? will be shattered. Yeah. Yes. So I mean, so it was a kind of a different kind of exposure because I was constantly, going through tests कि भाई क्या हो गया बच्चे को. 14 साल का बच्चा जो हाउस कैप्टन है उसको सडनली ये क्या हुआ. Because I was kind of a studious student till then. So they were more worried कि भाई क्या हुआ इस बच्चे को. And then after I did a few tests done, they told me it was a PDA. Come back in your holiday time. अच्छा. So I went back in the holiday time. That's when they did 2D echo, and they told me कि भाई आपका VSD है. You have to undergo a surgery in the next 2 to 3 VSD months. क्या होता है? VSD is a ventricle septum defect. Okay. क्या होता है ना, जब आपका हार्ट के बीच में मेन सेप्टम वॉल होता है जिसमें अगर होल एक एंगल में होता है, देन यू हैव अ ब्लू बेबी, जिसकी वजह से आपको प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है. तो उसके वजह से ना आई यूज्ड टू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और आई कुडंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो ये पहली बार जब फुटबॉल खेल रहे थे अचानक से पता अचानक से सडनली आई हैड अ काइंड ऑफ, मुझे पहले लगा कि इट्स अ पैनिक अटैक. कि अच्छा. हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, बच्चे 14 साल के बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है. तो इट वाज अ कंप्लीट काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर टू मी. एंड आफ्टर आई वेंट थ्रू अ डिफरेंट टेस्ट, VSD पता चला. एंड उसके वजह से मेरा आयोटिक वॉल जो होता है, जो मेन वॉल्व होता है फॉर द हार्ट, दैट वाज गेटिंग लूज. तो कहीं ना कहीं पे उसको भी थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ा. तो द फर्स्ट पर्सन सर्जन जो हु डिड माय फर्स्ट सर्जरी वाज कृष्णमोहन चरियन. ओके. And I was on the bed, 14-year-old kid who was on the bed with the same name as the doctor, surgeon. So, it was a shock even from him. He's a world famous surgeon. And he said कि यार मैं अपने surgery कर रहा हूँ, that is how I felt, Krishna. And I couldn't, replace your wall करके. He said कि कृष्णा अगर मैं replace कर देता wall, तो you would have had to have a continuous, medication throughout your life. तो इसके लिए मैंने वो नहीं किया करके. He didn't replace my wall, but he repaired it. ओके. But imagine a 14-year-old kid having a wall repaired. कौन रोकेगा? You can't control a 14-year-old kid. उसके बावजूद I came back and I again started playing football. उसके वजह से पूरा का पूरा wall rupture हो गया था. अच्छा. But because of his knot, the biggest advantage which I had was the kind of ruptured wall did not go anywhere else. It was still stuck there. So when Ashok Heshekar did my second surgery in Nanavati Hospital, he replaced a full wall. And my heart had enlarged, almost 90% enlarged हो चुका था. तो they were more scared कि कहीं ये rupture पूरा फट ना जाए heart. It was more complicated than the first. Yes. Okay. So I mean, it was a very different kind of surgery, and those surgery होकर I came back. I didn't give my 9th second half. I didn't give my 10th any exams. सीधा जाके फाइनल बोर्ड दे रहा था. So for me, मेरे दोस्त बोले साले तू तो यार बड़ा किस्मत वाला निकला. मैं बोला क्या क्यों? अरे यार हम वी हैव फुल रगड़ लिया हम लोग 9th and 10th, और तू भाई सीधा के बोर्ड दे रहा है.
लाइक यार तुमको क्या लगता है मैं अच्छे से अगर निकला हूँ कि भाई आई हैव एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रांसपायर्ड द होल लाइफ जहाँ पे आई कुड सी डिफरेंट लाइफ एंड उस टाइम पे आई गॉट एक्सपोज टू न्यूमरोलॉजी आई गॉट एक्सपोज टू टैरो कार्ड रीडिंग एंड fortunately the person who was sitting right next to me was a tarot card reader who gave me my first card set. तो ओके। उनके वजह से ना कहीं पे मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ डिविनिटी एंड द काइंड ऑफ मिस्टिज्म का मेरे को एक्सपोजर मिला था So that's how you got into न्यूमरोलॉजी एंड टैरो कार्ड. numerology and tarot and healing energy यस नहीं वो subject. हीलिंग एंड एनर्जीज बाद में आए क्योंकि हम्म, वंस यू स्टार्ट डिस्कवरिंग मिस्टिज्म हम्म, यू एक्चुअली फील जितना भी सीखोगे ना बहुत कम है क्योंकि हम्म, देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट और यू आर नॉट एक्सपोज टू हम्म, यू जस्ट वॉक इनटू अ रूम एंड यू फील डिफरेंट एनर्जीज ये है क्या हम्म, ये डिफरेंट एनर्जीज क्या होता है या व्हाई एम आई फीलिंग सो डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस तो यू एक्चुअली स्टार्ट ट्राइंग टू फिगर आउट क्योंकि आई वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड तो हमेशा ना रिसर्च का ज्यादा शौक था हाँ, तो कि कहीं ना इसके कहीं पीछे क्या है। यस इसके पीछे रीजन क्या है व्हाई एम आई फीलिंग हम्म, डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल हम्म, तो उसके वजह से ऑरा रीडिंग भी शुरू किया आई कैन एक्चुअली रीड अ पर्सनस ऑरा नाउ So what is aura so exactly? aura is basically a kind of you have every person has 7 colors that they actually kind of manifest हम्म, these colors are because of different things and जो ज़्यादा मेडिटेट करते हैं उनका कलर ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होता है जो उनका ऑरा ज्यादा होता है। ज़्यादा भी होता है एंड ज़्यादा क्लियर होता है जैसे हम्म, आपका जो ऑरा है दैट इज बिट मोर डिसकलर्ड हम्म, क्योंकि कई कलर्स मिक्स हो रहे हैं आपके ऑरा में एंड द हम्म, रीजन फॉर दैट मिक्सिंग इज बिकॉज यू डोंट कॉन्सेंट्रेट और यू डोंट मेडिटेट एज मच हम्म, तो व्हेन यू मेडिटेट तो आप क्या करते हो यू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड यू ऑर्गेनाइज योर ब्रीथिंग एंड एवरीथिंग तो हम्म, आपका जो कलर्स भी होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखते हैं हम्म। तो ये एनर्जी सेंटर है, एरिया वाइज यस फिजिकल एरिया है कि मेरा ऑरा इतना बड़ा नहीं, है, नहीं, इस काइंड फिज़िकल ऑफ। एरिया नहीं होता है, हम्म, ऑरा इज़ नेवर फिज़िकल हम्म, क्योंकि वो है ना एक डिस्टिंक्टिव कलर काइंड ऑफ एंड इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, मोर हम्म, इंटू अ फीलिंग, ओके? कि हाउ डू यू मेक द अदर पर्सन फील? डू यू मेक देम फील फ्रेंडली या हम्म, यू मेक देम फील एनिमिटी काइंड ऑफ? अच्छा। तो जैसे आप किसी से मिलते हो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है कि हम्म, भाई तू यार अच्छा भी बोलेगा ना हम्म, आई विल काइंड ऑफ ट्राई टू हिट यू बैक। हम्म, व्हाई? बिकॉज़ यार दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑरा दैट यू आर एक्सचेंजिंग विद द अदर पर्सन। हम्म, या तो उनके यहाँ से गलत है या तो आपके यहाँ से गलत है और इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फीलिंग दैट दे हैव जैसे है ना अ पर्सन हु वांट्स टू गो टू वॉशरूम आप उसको अप्रोच करोगे आप हाँ, उसको बोलोगे भाई तू मेरे को हाँ, समझा हाँ, 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 वो तो भाई ऑब्वियसली गलत हो रहा ही देगा तो हम्म, इट माइट नॉट बी the reason might not always be the person's feeling but it could be because of the circumstances that a person is coming from. इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं ऑरा और हम्म एनर्जी को लेके। मैं ओके कंफ्यूज्ड हूँ बहुत। ओके जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कैबिन में कोई एक बंदा आता है एंड देन ही और सी हैज सम एंग्री लेट्स से, हम्म और तो उसका वो क्या बोलेगे, वो एनर्जी एक्सचेंज में हम्म कि उसका ऑरा है, एनर्जी है, क्या है कि नेगेटिव है, इस ओके एनर्जी इज नेगेटिव एंड आई एम अट्रैक्टिंग इट, व्हाट इज Okay. इट? No, the person that the way you are explaining, he is triggered because of certain conditions. हम्म, Okay. So you cannot say it is an energy or it is an aura. क्यों? हम्म, क्योंकि aura and energies are consistent. They are अच्छा। never हम्म, triggered by something else. जैसे anger can be triggered, but हम्म, aura and energy is not can't be triggered. It's something that you have developed over the years. हम्म, तो अगर एक नेगेटिव पर्सन एक ट्रिगर्ड कंडीशन की वजह से आता है यस ही विल गिव यू अ नेगेटिव ऑरा बट नॉट ऑलवेज इज अ नेगेटिव ओके गॉट इट। तो सो ऐसे ऑरा इज परमानेंट, कि मेरा ऑरा यही है और इसको मैं कैरी करता हूँ, समथिंग लाइक दैट, एंड व्हिच इज यू कैन अनसीन। हाँ। डेवलप इट सी कैसा है अभी जैसे इफ यू वुड हैव सीन मी बिफोर हम्म, 2000 यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड कि मेरा ऑरा क्या है हम्म, क्यों क्योंकि मेरा ऑरा बिफोर 2000 वाज कंप्लीट हम्म, वेरिड इट वाज अ 14-year old boy who wanted to discover a lot of things हम्म, but after my two open heart surgeries I was very focused कि भाई might be that this is my last day हम्म, of my life I have to develop now अगर नहीं समझा एक ही लाइफ है बाद में का नहीं पता आगे का पुराना का नहीं पता क्या करूं मैं so I had to discover a lot of things and छोटा है see after my first surgery the first thing the doctor said is कि बच्चा आप 14 years old and you have undergone a major surgery या, understand your age is already 20 plus you are 14 years but you are already 20 plus your current age yani I was already 34 after my first surgery as per my first doctor he said अंडरस्टूड। कि भाई that is how you have to behave you have to slow down to that level एंड मेरे सेकंड सर्जरी के बाद माय डॉक्टर सेड कि भाई कृष्णा यू ऐड 30 इयर्स नाउ तो बोला यार सर्जरी के बाद एजिंग थोड़ा यस सा फास्ट हो क्योंकि नहीं गया। बिकॉज योर बॉडी टेक्स दैट लॉन्ग टू हील
गॉट इट। एंड इफ यू स्पीड अप, जैसे एक 15 साल का बच्चे को आप बोलोगे भाई स्पीड अप, तू कम हो जा, वो नहीं सुनेगा। हम्म, बट यू टेल हिम कि भाई यू हैव टू बिहेव लाइक अ 50-year-old गाय, तो हम्म, ही अंडरस्टैंड कि नहीं भाई, आई हैव टू वॉक स्लोली, आई हैव टू नो थिंक स्लोली, आई हैव टू नो हम्म, बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। हम्म, अगर मैं नहीं किया, अगर मैं जल्दी किया, मेरा हार्ट माइट नॉट होल्ड इट अप, क्योंकि हम्म, इट्स जस्ट नो रिपेयर्ड, या इट्स जस्ट बीन रिप्लेस, तो उसका जो स्टिचेस को हील होने का भी टाइम लगता है। हम्म, सी आई वॉज यंग विच इज वाई द हीलिंग टुक लेस टाइम, बट अगर मैंने टाइम नहीं दिया एंड आई कंटिन्यूड माई फुटबॉल करियर, तो भाई इट वुड हैव बीन ड्रास्टिक फॉर मी। गॉट इट। तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से ना आई हैड टू स्लो डाउन, आई हैड टू थिंक मोर मैच्योर्ड कि नहीं भाई ये करने से मुझे क्या फायदा या am I actually walking or am I doing the right things? तो कहीं पे ना मैं I became a bit more laid back after 2001, and if you see 2000 is 2 number, 2001 is 3 number, यानी जो पहला नंबर था that was moon का नंबर which actually controls my emotions and health, एंड जो 3 नंबर है दैट इज योर गुरु। तो गुरु ने कहीं ना कहीं पे ना सब कुछ ठीक करके बोला कि भाई दिस इज नाउ योर लाइफ, डिस्कवर योरसेल्फ। Got it. So that's how you got into numerology यस। and energy process aura. यस। And तो aura पे वापस आते हैं. So how, what are the other mediums to develop aura? एक है meditation. What are यस। the others? सो वन अदर थिंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। हम्म, तो कई बार कैसा होता है ना कि योर लाइफ एक्चुअली एक्सपैंड्स इट सो क्विकली दैट यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डेवलप। जैसे ना कुछ लोग होते हैं, देर वी से देर गिफ्टेड। हम्म. हम लोग किसी को गिफ्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको बहुत पहले पता चल जाता है व्हाट इज इट दैट दे वांट टू डू इन लाइफ, और Clarity and क्लैरिटी, self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस पहले ही आ जाता है। तो हम्म, उसमें ना उनका ऑरा बहुत फटाक से ड्रास्टिकली डेवलप होता है। हम्म, लाइक इफ यू लुक एट टीचर्स, उनका ऑरा हमेशा वाइट दिखेगा आपको। हम्म, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। हम्म, जो टीचर्स उनका ऑरा इज आइवरी और a bit more different colors, that is because of the fact that they are thinking of different things, जैसे materialistic kind of gains भी हो सकता है, या because we are all human. I mean, if even if I'm teaching, I would want something materialistic gain from my teaching, इसके वजह से मैं टीचिंग में चला गया हूँ। या आई वांट टू बी बिट मोर कि भाई अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय करते हुए मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। मे बी, सी देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर गेटिंग इनटू टीचिंग। कुछ लोग सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए टीचर बनते हैं कि भाई मैं आई कैन एक्सप्लेन बेटर करके। तो इन दैट केसेस दे हैव, और इफ यू इवन गो टू गुरु और संत महात्मा या जो ऋषि मुनि होते हैं उनके पास जाओगे, दे विल हैव अ डिस्टिंक्टिव वाइट ऑरा, एंड द मोमेंट यू गो देयर यू फील पीस, यू फील Yeah, वेरी पीसफुल एंड यू फील एंजॉयिंग। true. तो Even temples and यस, for that matter, yeah. in fact if you want to get into that, frequencies, Mhm, sound frequencies can give you very different or very clarity kind of auras। कि अगर आप अपना ऑरा पढ़ना चाहते हो, तो जस्ट लुक एट द सेंटर ऑफ द पर्सन's आई फॉर 2 minutes, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग कलर्स ऑन द साइड्स ऑफ द पर्सन, mhm, एंड these are the colors which are going to extend। mhm, कई बार ना एक्सटेंशन कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, different kind of feelings, different kind of emotions, different kind of things that a person is thinking at that point of time। बट ये कलर ना हर बार चेंज नहीं होते। अच्छा। This is what person is carrying, kind of baggage which he is carrying, he or she is carrying। हम्म, अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, मेडिटेशन, कुछ और? और फ्रीक्वेंसीज, म्यूजिक फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज, जैसे आपने बोला मंदिर जाते हैं, तो जब मंदिर जाते हैं, जब घंटी बजाते हैं, व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर क्लेंजिंग आवरसेल्फ, कि भाई व्हाट एवर इज आवर डिफरेंट ऑरस, वी आर क्लेंजिंग इट टू इंश्योर दैट वी आर मेडिटेटिंग, वी आर प्रेजेंटिंग आवर बेस्ट फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ द गॉड, कि भाई हम वहाँ पे एकदम भक्त के जैसे जाए, कि भाई हम अपना ईगो ना लेके जाए करके। तो व्हाट वी आर डूइंग विद द मंदिर का घंटी इज बेसिकली वी आर क्लेंजिंग और ऑरस, एंड वी आर गोइंग एंड वी आर प्रेजेंटिंग कि भाई भगवान यू हेल्प मी करके। अच्छा, गॉट इट। तो ये एनर्जी हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग, तो इसमें न्यूमरोलॉजी और रेकी का क्या कनेक्शन है? Okay, so Reiki is basically a different kind of healing methodology। इसमें ना you can do distance healing as well, and I have done Usui Reiki and also Kundalini Reiki। क्योंकि Usui Reiki इसलिए किया था क्योंकि that was the first form which was available to me, but that's a Chinese form of healing, or that is a Chinese form of kind of helping others get better, and I have done a grandmaster in that। दोनों में भी रेकी ग्रैंड ग्रैंड मास्टर किया, मास्टर, यस, हाँ। रिकी ग्रैंड मास्टर उसू में भी एंड कुंडलिनी में भी। हम्म, ओके, एंड कुंडलिनी इसलिए किया क्योंकि वो हमारा है, हमारा है। because हम्म, how do you sit to ensure that your complete all your chakras are aligned हम्म, and ensure that you are connected with the divinity is what is हम्म, Kundalini Reiki। How did you get into that understanding Reiki? And there are some forms of Reiki. Okay, so I was thankfully I was kind of
directed towards it क्योंकि I could start seeing auras very early. क्योंकि once you start reading tarot card and you go to that reading or you go extensively in that, तो you start seeing auras directly, automatically दिखना शुरू होता है. तो अचानक से आपको दिखना शुरू हो गया Yes, और yes. इट वाज a spiritual practice or It something like wasn't that? a spiritual practice. It's just Mhm. because see, when you are doing tarot card reading, you're actually connecting yourself with the divine, and you're asking for guidance. अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि कुछ महीने आप टैरो कार्ड रीडिंग Yes, कंटिन्यू करने के साल. बाद अच्छा कुछ साल के बाद ये आपको ये कलर्स दिखने लगे Yes, yes. एंड यू कैन लाइक आइडेंटिफाई कि ये कलर्स है, ये पर्सन है, Yes. इसका और So ये जब क्या। कलर दिखता है, you are हम्म, not sure कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ. हम्म, पहला चीज आपको डाउट होता है कि भाई मेरी आंखें खराब हो गई है कि क्या हाँ, हुआ तो है. आपको पहले ये नहीं पता था कि कलर्स तो दिख रहे हैं लेकिन ये है क्या, बाद में पता Yes, चला कि yes, ओके दिस इज ऑरा। yes. ओके, So गॉट इट। I honestly I read a book which was हम्म, about human auras. हम्म, And I was like, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ. अच्छा ये कलर का ये मतलब होता है. See, हाँ, because see, we तो see आपको a lot पहले of ये नहीं things. लगा कि ये मुझको क्या हो गया, मुझको कलर्स दिखने लगे हैं? नहीं, I felt मेरा आँख खराब है क्योंकि I was fourth standard is when I got my specs. I thought मेरे हाँ, specs में कुछ गड़बड़ है. I हाँ, mean probably पानी वानी की वजह से भी you see rainbows, right? हाँ, So अगर कलर दिख रहा है, I felt शायद से पानी है specs में. I used to clean my specs very regularly. हाँ, हाँ, तो my dad said कि भाई कुछ आँख में कुछ खराब हो गया, क्या हम्म, है? specs क्यों clean कर रहा है इतना? Then I हाँ, said नहीं डैड ऐसे कुछ कलर दिख रहा है. He said हम्म, क्या ये बुक पढ़, maybe you will understand what you are seeing now करके. अच्छा, देन Then I understood auras, and auras से मुझे पता चला कि भाई there is something more. There's something much more that I have not even discovered. I don't even know of. तो वो क्या है more? तो उसके लिए I went into Reiki, and Reiki healing actually helped me kind of because I could connect more better on tarot card reading. So once you're a tarot card reader, you have to have some kind of divination technique or some kind of healing rituals as well, क्योंकि then you can heal yourself. And जितना meditate करते हो उतना आप ज़्यादा easily tarot card के साथ भी connect कर पाते हो. अच्छा, So that is what helped me to become a better tarot card reader and to become more profound in my practice as well. so both Reiki and tarot card are connected. Yes. Okay. See, because in the end everything is energy. हम्म, आप energy के बाहर तो जा नहीं सकते हो. हम्म, What is there is energy. हम्म, Everywhere energy is there. You have to know how to bring it in, and you have to help the other person with that. तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे वो करना पड़ा मुझे. तो मिथ्स क्या है टैरो कार्ड को लेके? सो काफी जन टैरो कार्ड आजकल एज अ बिजनेस करते हैं. हम्म, बट टैरो कार्ड इजंट समथिंग सम डिविनेशन टेक्निक जिसमें आप प्रिडिक्शन देते हो. हम्म, टैरो कार्ड इज मोर अ गाइडेंस टेक्निक. सो लेट मी करेक्ट दैट, क्योंकि टैरो कार्ड में काफी जन बोलते हैं कि हम आपको ये बता सकते हैं वो बता सकते हैं. बट टैरो कार्ड पर इज फ्यूचर बता सकते हैं क्या रियली? यस यस प्रेडिक्शन है फ्यूचर का? इट्स ए गाइडेंस. हम्म, सी कैसा होता है कि आप इमेजिन करो, इफ आई टेल यू कि भाई यहाँ से सीधा जाओ, उसके बाद लेफ्ट लो, यू विल गेट टू द पेट्रोल पंप. ओके, वंस यू स्टार्ट मूविंग, अगर ट्रैफिक पुलिस ने मूवमेंट किया कि भाई राइट से घूम के जाना पड़ेगा, विल यू से कि भाई टैरो कार्ड गलत था? काइंड ऑफ ए जीपीएस। जीपीएस काइंड ऑफ. ओके, सो आई कैन गिव अ डायरेक्शन कि भाई आपका नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ पे आ सकता है, या हाउ कैन यू रीच इट, कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट आई कैन हेल्प यू विद. बट आई कांट टेक मनी फॉर दैट ना. अच्छा। आप डायरेक्शन देने के लिए आप पैसे लोगे. भाई हाउ डू तो सपोर्ट आजकल तो वो मॉल में बैठे रहते हैं यस. टैरो कार्ड लेके। सी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, कहीं ना कहीं पे पीपल फेल्ट कि यार आई हैव टू गेट वैल्यू फॉर द टाइम व्हिच आई एम स्पेंडिंग. तो द पेमेंट व्हिच आई एम मेकिंग इज नॉट फॉर द डायरेक्शन, बट यू आर पेइंग फॉर द टाइम ऑफ द पर्सन. ओके, जितना मैं बिजी हूँ दैट्स अ उतना मैं डिफरेंट टाइम लूंगा. पर्सपेक्टिव, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। यस. तो ये अगर डिफाइन आप करना चाहोगे कि टैरो है या फिर रेकी है, जिसको नहीं पता एनर्जी के बारे में, तो हाउ डू यू डिफाइन दैट बोथ ऑफ दिस? So one of the first things is whenever you feel bad or whenever you feel exhausted or whenever you're not feeling well, the first thing which happens is you feel low on energy. So what is that? That is basically energy consumption which is happening because they are trying to repair something. So when you take energy from someone else through Reiki or through tarot card reading, that is what is happening is the energy transformation or transfer is happening. जिसके वजह से ना you start feeling better. गॉट इट। तो पता कैसे चलता है कि मान लो कुछ हुआ, कुछ सिचुएशन हुआ मेरे साथ, जिसके वजह से मैंने आइडेंटिफाई किया अपने आप में कुछ एनर्जी डिप्लीट हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? कैसे पता करना है कि रेकी करना है या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास जाना है? किसके पास जाना है? Okay. So Reiki के पास तब जाते हो when you have a medical issue. Okay. अच्छा। Health wise कुछ आपका प्रॉब्लम है which normal medicine might not be able or may be able to help, but it is not giving you that faster recovery.
देन यू गो टू रेकी, जहाँ पे इट विल काइंड ऑफ स्पीड अप द प्रोसेस, कि भाई अगर ये नॉर्मल इसमें नहीं हेल्प हो रहा है तो इट कैन हेल्प यू काइंड ऑफ हील द थिंग विच इज टेकिंग जैपिंग अ लॉट मोर एनर्जी। जैसे एज यू सेड कि अगर मेरा एनर्जी लो हो रहा है एंड माई टोटल बॉडी एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू रिपेयर दैट, एंड फिर भी वो टाइम ले रहा है, तो किसी और का एनर्जी माइट स्पीड अप द प्रोसेस। अच्छा, ओके। so someone who is trained in Reiki healing can यस। heal you. यस। Okay. एंड यू गो टू अ टैरो कार्ड रीडर ओनली व्हेन यू वांट एन आंसर टू क्वेश्चन, Hmm. कि भाई आई एम नॉट गेटिंग ए डायरेक्शन, Hmm. दैट इज व्हेन यू अप्रोच अ टैरो कार्ड रीडर। Hmm. एंड काफी बार क्या होता है ना, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, पब्लिक ना अप्रोच मी कि Hmm. कृष्णा कैन यू हेल्प मी विद दिस, Hmm. एंड आई हेल्प देम, क्योंकि अगर पॉसिबल है व्हाई नॉट। ओके। Hmm. बट देन उसके बाद ना मल्टीपल क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, फ्री है ना Hmm. और ज्यादा लोग पूछते हैं, तो आई एम लाइक हाँ. यार यार फ्री हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड ओनली फॉर यू। Hmm. और भी Got it. लोग हैं जिनको मुझे हेल्प करना है, Hmm. अगर ज़रूरत है आई डेफिनेटली हेल्प यू, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है यू कांट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। Hmm. Hmm. So Reiki generally works बीमारी के टाइम पे या some other practicalities? बीमारी के टाइम पे, और यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आउट है, Hmm. इवन इन दोस केसेस रिकी कैन हेल्प Okay, so you डेफिनेटली। reach out to Reiki grandmasters or someone who's a Reiki healer. रिकी हीलर को पहले अप्रोच करते हो, ये प्रैक्टिस होता है Reiki healing? यस यस। अच्छा. तो रिकी ग्रैंड मास्टर को तब अप्रोच करते हो व्हेन यू वांट ग्रो अप इन द रिकी साइकिल। अच्छा, रेकी का हायरार्की क्या है? ग्रैंड मास्टर तक कैसे पहुँचते हो आप? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज रिकी हीलर, हुँ, उसके हुँ। बाद एक रिकी इंस्ट्रक्टर होता है, देन यू हैव ग्रैंड मास्टर हु इज सिटिंग अबव ऑल, हुँ, हु कैन काइंड ऑफ गिव यू द काइंड ऑफ राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, कि भाई इसके इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। हुँ, क्योंकि ग्रैंड मास्टर्स आर प्रैक्टिसिंग रिकी, वो हुँ, कंटिन्यूसली वो जो सिंबल्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, हुँ। तो कहीं ना कहीं पे वो सिंबल्स हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है हमें भी। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। आपने बताया क चक्रा हीलिंग होता है थ्रू यस। रेकी, यस। तो वो होता है और एक क्या होता है? एक चाइनीज़ फॉर्म। उसू रिकी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो उसू रिकी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स, जबकि चक्रा हीलिंग और कुंडलिनी रिकी गोज थ्रू आर बेसिक 7 चक्रास, 9 7 चक्रास या चक्रास 7 हीलिंग। चक्रास का जो ये होता है उसके ऊपर फोकस करके हीलिंग करता है, लाइक हुँ, हुँ। स्वादिष्टाम सब कुछ हील ये करते हो। मंत्रास होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली कैसे हील करते हैं ओके, रेकी में सो वो? मंत्रास भी होता हाँ, है, देयर आर ये भी होता है ओम, ये सब जो होते हैं हुँ, अपने हुँ। बीज मंत्र बोलते हैं, हुँ, उसके हुँ, थ्रू हुँ। भी आप एक्टिवेट करते हो उन चक्रास को, हुँ, हुँ। एंड वो चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं यू आर इन अ डिफरेंट लेवल। हुँ, सो लाइक हुँ। आई यूज्ड टू गेट अप एट 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग, बट 3:30 उठता हूँ तो मेरी बेटी उठ जाती है हुँ। तो वाइफ ने फटकार दिया तो मैंने उठना बंद किया है। वरना यूजुअली जो बोलते हैं जो अमृत काल जो बोलते हैं कि भाई 3:30 से 4:30 बजे ब्रह्म के बीच मुहूर्तम। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, हुँ, कि भाई उस टाइम पे उठो, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द डिविनिटी अ हुँ। लॉट मोर ईजियर। तो उस टाइम पे उठा करता था, बट बिकॉज जैसे ही मैं उठता हूँ माई डॉटर वेक्स अप और मुझे फटका पड़ता है तो इसलिए आई स्टॉप्ड काइंड ऑफ वेकिंग अप अर्ली। गॉट इट। तो देन आते हैं वास्तु पे। ओके। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ यस। एनर्जी। नहीं, बिकॉज वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोर देन 44% ऑफ योर लाइफ यू आर स्टेइंग एट योर होम। हुँ, तो अगर करेक्ट। उस होम का योर एनर्जीज आर नॉट करेक्ट और इट्स नॉट अलाइन करेक्टली, जैसे वास्तु दोष बोलते हैं, हुँ, हुँ, वास्तु दोष इज नथिंग बट यू हैव केप्ट द रॉन्ग थिंग एट द रॉन्ग प्लेस, या द राइट थिंग एट द रॉन्ग प्लेस दोनों भी सूरतों में ना ये वास्तु दोष बोलते हैं, बट बेसिकली क्या होता है उसकी वजह से आपका एनर्जी जो होना चाहिए, जैसे अगर आप टेम्पल जाते हो, हुँ, व्हाई डू यू गो टू अ टेम्पल? क्योंकि आपको पता है वो जो ये है बेल जो है, वो जब आप बजाते हो वो रेजोनेंस जो देता है, थोड़ा-सा दैट फ्रीक्वेंसी है, यस, पीसफुल लगता है। इट इज़ नॉट जस्ट पीसफुल बट इट क्लेंजेस यू। हुँ, एंड जब आप बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी सेंटर। यस, जो जब आप घर जाते हो आप इसलिए जाते हो ना कि भाई मेरा घर है, आई कैन हुँ, रेस्ट, आई कैन काइंड ऑफ क्लेंस माई सेल्फ, आई कैन रिजेनरेट एंड मूव फॉर द नेक्स्ट डे। हुँ, 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 बट इफ करेक्ट। यू गो होम एंड आपको कलेश मिले, हुँ, आप हुँ, कैसे करोगे? शांत कैसे होगे, या हाउ डू यू काइंड ऑफ रिजेनरेट हुँ, हुँ, योरसेल्फ? यू कांट बी पॉसिबली डूइंग दैट। हुँ, हुँ, तो बेसिकली जो वास्तुशास्त्र होता है दैट हेल्प्स यू क्लेंस योर सोल एंड गिव्स यू द काइंड ऑफ एनर्जी टू हील योरसेल्फ। हुँ। रेंटल, अगर आप रेंटेड हाउस पे रहते हो, स्टिल अप्लाइज़? Yes, because see हमारा है ना, if you look at वास्तुशास्त्र और you look at अपना कुंडलिनी देखो, या you look at हुँ, अपना न्यूमरोलॉजी देखो, या टैरो कार्ड देखो, या you can also look at astrology, हुँ, हुँ, all of these sciences they say one thing, कि भाई you can't change everything, हुँ, हुँ, but जो चेंज कर सकते हो वो तो चेंज करो, उसको तो कंट्रोल में रखो। हुँ, सो वट एवर थिंग्स आर देयर, जैसे हमारे इसमें ना वी यूज टू हैव बगीचास। हुँ, क्यों करते हैं हम बगीचे इतने सब?
Why used to have तुलसी का प्लांट रखते हैं, वी हैव मनी प्लांट एट अ डिफरेंट हम्म, प्लेस. क्यों रखते हैं हम लोग इतने सब? क्योंकि दे काइंड ऑफ क्लेंस यू. हम्म, They kind of help you kind of get better air, and they also help you get better results from your own home. got it, got it. So what are some common vastu mistakes in everyone's home? तो एक तो वॉशरूम. वॉशरूम में कमोड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, या ऐसा हम्म, कुछ होता है, जिसके वजह से कई बार योर मनी गेट्स ड्रेन्ड आउट. अच्छा। क्योंकि आपका या मल्टीपल ये होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, हम्म, जिसके वजह से व्हाट हैपेंस इज, जो मनी, जो लक्ष्मी देवी है, वो ड्रेन आउट हो रही है वहाँ पे. अच्छा। जो पैसा आ रहे जाते ही रहते हैं. यू डोंट तो ये अंडरस्टैंड. तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए। यस. बट आजकल तो लाइक 3 BHK फ्लैट में देयर आर लाइक मल्टीपल वॉशरूम्स। यस. सो नहीं, क्योंकि कैसा होता है सी, द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग आल्सो मैटर्स ना. आजकल तो यू डोंट हैव दैट बिग अ फैमिली. 3 BHK का फैमिली आजकल नहीं है. हस्बैंड वाइफ बच्ची है, एंड 3 BHK के अपार्टमेंट में रहते हैं. क्या? क्यों? You have to also understand the thought process behind a 3 BHK family. अगर you say कि नहीं बॉस, मैं रह रहा हूँ, मेरे मॉम डैड रह रहे हैं, एंड माई डॉटर इज स्टेइंग और माई सन इज स्टेइंग. आई कैन अंडरस्टैंड. किड्स बेडरूम एक अलग रखा है, अपने अपना फैमिली, मदर पेरेंट्स को आपने मास्टर बेडरूम दिया है, एंड यू आर स्टेइंग इन अ डिफरेंट बेडरूम. बट ऐसा नहीं होता है. अच्छा। इफ यू लुक एट इट, वो लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को गेस्ट बेडरूम देते हैं. बट जो आपके घर का बड़ा है, ही इज स्टेइंग इन गेस्ट बेडरूम. हाउ कैन दैट हेल्प योर वास्तु? और क्या होता है? और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फैमिली है, दे आर नॉट एक्चुअली सिटिंग टुगेदर फॉर फूड. द फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिनर। मील ऑफ द डे इज योर डिनर, जो आप फैमिली के साथ नहीं खाते हो. आप या अच्छा। तो फोन पे बैठे हो, या तो आपकी वाइफ बैठी है टीवी अपने देख के खा लैपटॉप रहे पे, हैं, या हाँ। टीवी देख रही है बच्ची. हम्म, हाउ विल दैट हेल्प? हाउ विल दैट हेल्प योर फैमिली इकोनॉमिक्स? बेसिक फैमिली एनर्जी आपका है ही नहीं फिर. और फिर कौन से जगह पे क्या रखना चाहिए इन यस. टर्म्स ऑफ, उसमें क्या है? सो भगवान का जो मंदिर होता है, दैट हम्म, शुड नॉट बी फेसिंग साउथ वेस्ट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बिना जाने रेंटल हाउस, जैसे एज यू सेड, हम्म, रेंटल हाउस में जहाँ पे अवेलेबल हो गया हमने रख दिया. हम्म, बट उसका, उसके वजह से जो आ रहे, जो जहाँ से आने चाहिए, जैसे इवन काल भैरव हैज 8 फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स. हम्म, एंड उनके 8 फॉर्म्स के लिए 8 ये भी है, पार्वती देवी भी है. एंड वी डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस. एंड कौन से डायरेक्शन में आपने रखा है, इनवाइट्स अ डिफरेंट इट काइंड ऑफ मैटर्स। एनर्जी. इनवाइट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल टुगेदर. अच्छा। तो वो एनर्जी, जब वो टाइप ऑफ एनर्जी आएगा, कैन यू हैंडल ऑल एनर्जीज? वी आर नॉट इवन अट्यून टू दैट. या तो कई बार ऐसा होता है कि भाई एनर्जी आ रहा है, अपना एंड वी डोंट एनर्जी भी स्ट्रांग अंडरस्टैंड. होना हाँ. चाहिए, अपना ऑरा स्ट्रांग होना यस. चाहिए, मे बी। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड. सी, हाँ। व्हाट हैपेंस इज यू गो होम, एंड एक एक घर में यू फील, अरे यार मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे. एक एक घर में यू गो हाँ, वो होम, फील होता है एंड यू once फील, you अरे enter। यार अच्छा लग रहा है यार, दिस इज अ वेरी बिग होम. हम्म, जबकि घर बड़ा नहीं है, बट यू फील अरे यार विशाल लग रहा है. तो घर का भी ऑरा होता है। Yes, of course. ओके। See, because see, if you have good amount of plants in the house at exact go proper points, yeah, you have waterfall, regular जो change हो रहा है, that kind of cleanses the kind of environment, and that also gives you the kind of right kind of oxygen, and everything fulfills करता है. And you have a pleasant smell. ऐसा नहीं कि भाई आपने बस होम स्प्रे मार के रख दिया घर में, अच्छा। कि भाई गेस्ट आ रहा है, स्प्रे मार के रख दिया. बट वो इवन द व्हाट यू आर यूजिंग इज पैरासो, ये होता है, उसमें भी लॉट ऑफ केमिकल्स आर देयर. हाउ कैन दैट क्लेंस योर होम? गॉट इट। तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि भाई ये आ रहे गेस्ट आ रहे करके हम लोग सेंट मार देते हैं. बट उसके वजह से वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग नेगेटिविटी इन. क्योंकि यू आर जस्ट टेकिंग द स्मेल अवे. बट जो है एनर्जी जो है, वो उसको तो आप नहीं क्लेंस कर रहे हो. ये जो एनर्जी डिग्री है वास्तु में जो आपको अफेक्ट करता है, यस. तो व्हाट डिग्री डज इट अफेक्ट? कि बहुत बुरा होता है See, for some it reason? depends also on the person's energy or aura, as you हम्म, said. कि अगर मेरा aura strong है, and I'm cleansed already, हम्म, and I'm coming from very kind of controlled background, जहाँ पे भाई I'm शांत. एक शांत बंदा या एक शांत plant comes into a different aura or a different energy field, it will not move, it will not waver. बट इफ आई एम डिस्टर्ब, इफ आई एम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, या मेरे फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, एंड आई मूव टू अ डिफरेंट ऑरा, तो वो इमीडिएटली मुझे इफेक्ट करेगा, एंड वो मुझे एजिटेट करेगा. क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, यू कम फ्रॉम अ वेरी हीटेड एनवायरनमेंट, एंड यू सडनली स्टार्ट बारिश हो रही है घर में, यू गेट इरिटेट, अरे क्या है करके झिलझिला देते हैं हम लोग. व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली अ चेंज ऑफ ऑरा, चेंज ऑफ एनर्जी फील्ड. ओके। And if you have kids at home, that's the first thing which happens.
आप ऑफिस से ना झगड़ वगड़ के आए हो घर पे, एंड बच्चा ना चिल्लाना शुरू करता है, पापा 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 ये करते हैं, ऐसे खेलते हैं, वैसे करते हैं, एंड यू सडनली झिलझिला देते हो, यार क्या है यार, रुक जाओ तुम पहले करके। वो क्या हो रहा है, बिकॉज सडनली एनर्जी शिफ्ट हुआ है एंड यू आर अनएबल टू कंट्रोल इट। गॉट इट। तो इट्स साइकोलॉजी सेज कि भाई यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बच्चा है। बट ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग झंझनाहट में ना हम लोग चिल्ला देते हैं। बच्चा भी वही सीखता है कि भाई चिल्ला दो पहले करके, एकदम से ना सब शांत हो जाएगा, देन वील नो काइंड ऑफ कंट्रोल इट करके। बट नो वी डोंट अंडरस्टैंड कि भाई बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। Got it. Since you have worked on Rudraksha quite a lot, Yes. and a greater part of your work has been on Rudraksha study, let's talk about that. Sure. So, what is Rudraksha? जितना मैंने सुना है, it's tears of Shiva Yes. that fell on earth. Yes. But is it botany only or divinity इसमें क्या है? ओके, सो रुद्राक्ष हैज अ लॉट ऑफ हीलिंग कैपेबिलिटीज एज वेल। अगर आप आयुर्वेदा में भी देखोगे, वी यूज रुद्राक्षस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग। इनफैक्ट एनर्जी बैलेंस करने के लिए वी यूज रुद्राक्ष ऑन अ डे टू डे बेसिस एज वेल। तो रुद्राक्ष में क्या होता है कि जितना मुख होता है उतने नंबर ऑफ सीड्स होते हैं रुद्राक्ष में। सो इफ यू डू अ स्कैन ऑफ द रुद्राक्ष जो आपने खरीदा है या आप रिपोर्ट मंगवाते हो, तो व्हाट दे सेंड यू एज अ स्कैन रिपोर्ट। उसमें ना आपको डॉट्स दिखते हैं कि कितने बीट्स है उसमें। तो जितने मुख है उतने नंबर ऑफ सीड्स भी होने चाहिए उसमें। अच्छा, कितने मुखीज होते हैं टोटल? देयर आर इवन 24 मुखी भी है एंड अबव भी है। अच्छा। बट यू नो दैट डिपेंड्स, क्योंकि कैसा है ना, दीज आर सीड्स बेसिकली। वाटर रुद्राक्ष इज यू नो बेसिक सीड्स, इट्स अ यू नो फ्रूट जो जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से यू कैंट कंट्रोल यू नो द ट्री, राइट। या आप ट्री को थोड़ी कंट्रोल करोगे कि भाई मेरे को इसी साइज का आप यू नो फ्रूट दोगे। गॉट इट। तो वो ना डिफरेंट लोकेशंस की वजह से, डिफरेंट एनवायरमेंट्स की वजह से डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। And who should wear which Mukhi Rudraksh? So Vanmukhi Rudraksh is mostly for businessmen or you know someone who is seeking like Mesh Rashi and you know different other rashis है जो actually Vanmukhi पहनना चाहिए, क्योंकि वो sun का प्रतीक होता है। Sun you know, is always good for you know starting something new or you know developing a business। जहाँ पे ना you are trying to explore your services or products to get money। तो उसमें ना Vanmukhi बहुत helpful होता है and Two-mukhi is for moon। तो जो यहाँ पे चाँद आता है वहाँ पे इमोशनल कंट्रोल के लिए होता है या इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी होता है। ओके, Got it. सो इफ यू लुक एट यू नो आल्सो ऑन द साइड ऑफ यू नो कि भाई आपका रुद्राक्ष टूट गया, तो कई बार मैंने ये भी देखा है दे स्टिल वेयर दैट रुद्राक्ष माला। तो वो नहीं नहीं पहनना पहनना चाहिए। चाहिए, क्योंकि अगर आपका रुद्राक्ष टूटता है या फूटता है, दैट इज बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब दैट मच नेगेटिविटी एंड उसके वजह से इट्स ब्रोकन नाउ। ओके, क्योंकि कैसा है अभी अगर आप देखोगे कोई भी चीज़, अगर कॉटन भी आप यूज़ करोगे तो वो जब पानी अब्सॉर्ब करता है तो वो ना फूलता जाता है। तो वैसे ही आपका रुद्राक्ष भी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है, तो वो ना स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे वो फूट जाता है। अच्छा। उसके बाद यू शुड नॉट वेयर दैट माला, बिकॉज वो जितना नंबर होना चाहिए वो नहीं है अभी। आप ऑकेजनली भी पहन सकते हो क्या रुद्राक्ष? यस यस, So, बट एट टाइम्स जैसे एक हफ्ता पहना फिर एक हफ्ता नहीं पहना चलता है ऐसे? फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, मेरे साथ ये होता है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो इज इट ओके और नॉट ओके, या फिर Yes, इट yes. नेगेटिवली अफेक्ट्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी रुद्राक्ष जहाँ पे आप जो माला आपने पहना है उसके साथ फिर आपको जप नहीं करना चाहिए। अच्छा। ओके, और जप का माला दूसरा होता है ना, या Yes. फिर पहनने वाला दूसरा होता है? नहीं, पहनने वाला आप जप करने के बाद इफ एट अ सर्टेन पॉइंट यू फील यू नो यू वेयर इट, बट दैट बिकम्स फॉर शो देन ओके। इट्स नो लॉन्गर यूजफुल फॉर जप, क्योंकि आपने यूज कर लिया। आप उसको सिद्ध माला बोलते हैं, Yes, इफ आई एम नॉट yes. रॉन्ग। ओके। इफ नो अगर आप जैसे आप अपना ना जो आप खाते हो वो आप एज एस खाते खाते आप भगवान को नहीं समर्पित करते हो। क्यों? क्योंकि कहीं पे आपको लगता है कि भाई मैंने अपना झूठा दे दिया टाइप। तो आप जो माला आपने पहन लिया वो झूठा हो गया करके हम बोलते हैं। ओके, यू कैंट गिव इट बैक टू जप करने के लिए फिर से भगवान को नहीं समर्पित कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट बैक टू थर्ड मुखी नाउ। ओके, तो थर्ड तीन मुखी इज मुखी। फॉर जुपिटर। ओके, सो गुरु के लिए होता है वो ये। तो जहाँ पे ना जो टीचर्स है या ना जो ज्ञान बांटना चाहते हैं, या इवन एज यू आर नो पॉडकास्ट में आप करना चाहते हो, तो यू कैन यू कैन वेयर अ त्रिमुखी। क्यों? क्योंकि त्रिमुखी इज फॉर ज्ञान, और ज्ञान हर जगह पे होता है। तो आप जितना बटोर Knowledge सकते हो sharing. बटो। यस, ओके, टीचिंग फील्ड। टीचिंग फील्ड और नो समथिंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। जुपिटर इज ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट फॉर कम्युनिकेशन। फोर मुखी। फोर मुखी इज फॉर राहु। राहु का ना एक बहुत ही अलग स्टोरी भी है। तो जिसके हॉरोस्कोप में राहु है। यस, हॉरोस्कोप में बोलो या ना, हम तो ऐसे बात करते हैं कि भाई जिनको ना क्लैरिटी चाहिए, लाइक इफ यू वांट क्लैरिटी इन लाइफ, क्योंकि इफ यू नो द स्टोरी ऑफ राहु, राहु वाज ये था, राक्षस थे। ओके, जब आपका समुद्र मंथन हुआ जिसमें तो जो अमृत लेके भाग गया? नहीं, भागा नहीं, ही पी डिडंट लिया। रन।
द जोक वाज कि सब कहते हैं कि विष्णु भगवान ने धोखा दिया था राक्षसों को, कि ही केम एज मोहिनी अवतार एंड उन्होंने सिर्फ अमृत दिया देवताओं को। बट व्हाट पीपल फॉरगेट इज, हमारे वेदास में क्लियर कट लिखा है कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ था, जो पहली चीज आई थी वो था हालाहल, जो शिव जी भगवान ने पी लिया था पूरा, क्योंकि दैट इज पॉइजन, यू कांट गिव इट टू एनी समवन एल्स। ओके, तो उन्होंने पूरा ग्रहण कर लिया था एंड उन्होंने रोक दिया था, पार्वती माता ने हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से इट स्टेड इन द थ्रोट ऑफ शिव जी। ओके, फिर उसके बाद जो आया वो था मदिरा। मदिरा इज नथिंग बट अमृत फॉर राक्षस। ओके, ओह ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि कैसा होता है कि जो आप ये खाते हो, मांस मच्छी खाओगे, तो उसके बाद ना योर बॉडी हैंडल्स अमृत इन अ डिफरेंट वे एंड नो वो मेटाबोलाइज करता है फॉर गिविंग यू स्लीप और नो गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस। अमृत ना आपको भ्रमित भी कर सकता है, कहते हैं। अच्छा। ओके, उसके बाद आया अमृत विच वॉज गिवन टू ऑल द देवतास। ओके, तो बराबर बांटा ना, पहला आपको मदिरा आया जो आपको राक्षस को दिया, उसके बाद अमृत आया जो आपने देवता को दिया, तो इसमें धोखा कहाँ हुआ? बट स्टिल मदिरा पी के भी द ओनली राक्षस हु वाज अंडरस्टैंडेबली क्लियर कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है करके वाज राहु। अच्छा, वो पीके भी स्टेबल था। पी के भी स्टेबल था, ही हैड द क्लैरिटी कि यार ये शायद से कोई गड़बड़ है। हाँ, ये मोहिनी जो आई है, शी इज नॉट हु शी सीम्स टू बी। हाँ, इवन आफ्टर मदिरा डिसेप्शन को क्लैरिटी दिया एंड ही वेंट एंड स्टूड विद द देवतास। बट जैसे हम स्कूल में जब खड़े हैं सब, तो हमें भी पता चलता है ना, ये कोई बाहर वाला कोई स्टूडेंट आ नोटरियस गया, आदमी आके हमारे लाइन पे Yes. खड़ा हो गया। तो ना सूर्य भगवान ने बोला यार ये देवता नहीं लगता। हाँ, तो उसकी वजह से विष्णु भगवान ने पहचाना कि भाई ये राहु है एंड देन ही इंस्टेंटली टुक सुदर्शन एंड ही कट हिज थ्रोट। तो आपका जो अमृत था दैट स्टॉप्ड इन द थ्रोट ऑफ राहु। ओके, वो ना अंदर गया ना बाहर आया, जिसके वजह से ना ही बिकेम अमरता मिला उनको एंड ही ऑल्सो बिकेम राहु एंड केतु। तो जो हेड पार्ट है दैट इज राहु एंड जो बॉडी का नीचे का पार्ट है दैट इज केतु। ओके, तो राहु इज द वन हु गिव्स क्लैरिटी। काफी लोग बोलते हैं यार राहु महादशा आ गई तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें, बट वो भ्रमित भी करते हैं एंड वो क्लैरिटी भी देते हैं, क्लैरिटी भी देते क्योंकि जो भगवान भ्रमित कर सकता है वही क्लैरिटी भी दे सकता है। पब्लिक वो भूल जाते हैं। पहले आपके मन में डाउट पैदा करेगा, फिर Yes. आपको क्लैरिटी देगा। नहीं, बिकॉज सी अगर आप किसी को क्लैरिटी देना चाहते हो, जैसे इफ आई हैव टू गिव क्लैरिटी ऑन एनर्जी, आई हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज एनर्जी। करेक्ट। तो उसके बिना मैं आपको क्लैरिटी कैसे दूं? तो भ्रमित नहीं करते, ही टेल्स यू द व्हाट इज द टोटलिटी ऑफ एनर्जी। तो वो टोटलिटी में कहीं ना कहीं पे आपको लगता है यार भ्रमित कर रहे हैं क्या आप मेरे को, कितना बात करते हो आप। बट यार जब तक आप बताओगे नहीं बेस से, तब तक आप बिल्डअप कैसे करोगे टू गिव यू क्लैरिटी। गॉट इट। देन पांचमुखी व्हिच इज वेरी कॉमन, यस, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है? पांचमुखी गिव्स यू बैलेंस। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना भ्रमित भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बार हम लोग ये भी समझ नहीं पाते कि वो करना क्या है हमें। वी लूज, जैसे आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, वी फोकस ओनली ऑन ऑफिस। घर पे आ गए भाई, ऑफिस का आप काम आप लेके घर पे आ गए हो, यू आर अनएबल टू बैलेंस योर वर्क लाइफ और यू आर अनएबल टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इसमें ना पांचमुखी हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आपको बैलेंस लेके आता है लाइफ में। ओके। छह छहमुखी इज वेरी गुड फॉर सम काइंड ऑफ हीलिंग और सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। वो है ना एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस एज वेल। देन सेवन मुखी फॉर स्पिरिचुअल हीलर्स, जैसे मैं हूँ या हमारे जैसे बंदे जो होते हैं उनको सेवन मुखी हेल्प्स, क्योंकि वो एनहांस करता है हमारे स्पिरिचुअलिटी को एंड कहीं ना कहीं पे इट क्लेंजेस अस एज वेल, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाने का हेल्प करता है, क्योंकि वी ऑल्सो कम इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनका एनर्जीज भी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो सेवन मुखी इज वेरी कॉमन रुद्राक्ष विच यू सी ब्रेकिंग वेरी इजीली, क्योंकि इतना सब कुछ अट्रैक्ट करता है, वो खींच लेता है कि एनर्जीज को, तो वो कहीं ना कहीं पे वो जल्दी ब्रेक भी हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 8th नाउ। 8th शनि भगवान। ओके, He तो शनि is- महादशा है तो 8। शनि महादशा है तो 8, यस। और इफ यू आर लॉ समवन हु इज प्रैक्टिसिंग लॉ और हु इज अ पार्ट ऑफ द लॉ स्ट्रक्चर, देन ऑल्सो 8 मुखी हेल्प्स अ लॉट। जैसे अपना पुलिस हो गए या लॉयर्स हो गए, दे फॉर देम 8 मुखी हेल्प्स अ लॉट। लीगली जो ये है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप कोई लीगल केस में भी फंसे हुए हो, देन ऑल्सो 8 मुखी। 8 मुखी इज नॉट फॉर लीगल केसेस में फंसे हो, क्योंकि ऑनेस्टली ना इट कांट हेल्प यू गेट आउट ऑफ Okay. लीगैलिटी, बट यस अगर आपको बट फ्रॉम द सिस्टम। यस
समवन फ्रॉम द सिस्टम इट हेल्प्स, क्योंकि कई बार कैसे होता है सिस्टम में जो है उनको ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, मेंटली दे बिकम ए लॉट मोर अनस्टेबल। क्योंकि होता ही है कि हर एक इंसान आपको आके बोलता है ये है वो है ऐसा है वैसा है, बट टू हैव क्लैरिटी कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है कि नहीं, शुड आई हेल्प हिम और शुड आई नो टेल हिम टू नो गेट लॉस, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं पे क्लैरिटी जरूरत होता है, बिकॉज यू गेट प्रेशराइज एंड नो आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द पर्सन दैट यू आर हेल्पिंग हिम। तो उसके लिए ना यू हैव टू बी श्योर कि हाँ भाई ये सही है नहीं है। तो 4 मुखी एंड 8 मुखी आर नो वेरी क्लोज, दे गो हैंड इन हैंड इनफैक्ट। ओके, तो कॉम्बिनेशन भी पहनते हैं यस यस रुद्राक्ष। काफी जन पहनते हैं, यस। जैसे आई सेड नो फॉर यू 1 मुखी एंड 3 मुखी कैन हेल्प अ लॉट, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड जहाँ पे भाई यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड ऑल्सो नो ग्रो करना है, कम्युनिकेशन भी ग्रो करना है आपको, तो 3 मुखी कैन हेल्प अ लॉट। ओके, देन नाइन्थ। नाइन्थ इज नो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी यूनिक नंबर, आप 9 को ऐड करो मल्टीप्लाई करो यू ऑलवेज कम टू 9, एनीथिंग कम्स टू 9। तो बहुत अच्छा भी कर सकता है बहुत बुरा भी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं पे ना सिर्फ जो पाइसेस होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है 9, क्योंकि ना इट्स अ वेरी अनकंट्रोल और अनप्रेडिक्टेबल नंबर, तो ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अध्ययन करके ही हम नो सजेस्ट करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते उसे। लिटिल अनकॉमन। लिटिल अनकॉमन एंड ऑल्सो बिकॉज वो थोड़ा इट बिकम्स वेरी वेरीड, अगर आपने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का देखकर आपका चार्ट देखकर आपने नहीं सजेस्ट किया दैट कैन ऑल्सो गिव अ लॉट नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा, 10। 10 बिकम्स 1 अगेन, क्योंकि हमारे इसमें ना न्यूमरोलॉजी में 10 नहीं होता, जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता है, जीरो अच्छा। हम लोग काउंट नहीं करते बिकॉज वी ब्रिंग इट टू सिंगल नंबर। तो अगर आप 10 बोलोगे या 11 बोलोगे इट कम्स टू 1 एंड 2 अगेन। ओके 11। 11 is as I said for two number, for Okay. lot to do with emotional imbalance or emotional चीजों के लिए you use the 2 number. Okay, so and now I understood. It's like 1 plus 1, 2, then 1 plus 3 is Yes, same as the benefit yes. that a 4 Mukhi 4 number Rudraksha. मुख्य It goes रुद्राक्ष on like that. yes I think सबसे difficult होता है to procure, I guess, is 21 Mukhi and 24 Mukhi, which yes is has to do something with business. yes and also because of the fact that जितना आपका 14 तक ना is very natural. ओके ये हर जगह पे ऑलमोस्ट ग्रो हो जाता है, सो इंडोनेशिया बोलो या नेपाल बोलो या इंडिया में भी है, ओके यू गेट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल रुद्राक्षस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, लाइक इंडोनेशिया और नेपाल से ज़्यादा आता है एंड इंडिया में भी 20% आता है, ओके पीपल आर स्टार्टेड ग्रोइंग रुद्राक्षस होम एट सेल, ओके बट 14 के बाद मुखी है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इट नीड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग भी होता है, स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशंस भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि वी कांट नॉट ड्रॉ समथिंग। So 21 Mukhi really business को help करता है या Yes, किसके लिए? because it's 3 number. See, 21 is nothing but 3. 2 plus 1 is 3. So 3 is for communications and business. और जितना मुखी है साइज भी बड़ा है शायद। Normally नहीं, क्योंकि you can't control the size of a fruit. Okay, क्योंकि रुद्राक्ष is basically a fruit, dried fruit होता है, and जितना मुखी होता है, as I said, those are the number of seeds which are there in the रुद्राक्ष. Okay, अभी imagine करो if a fruit has 21 seeds, obviously वो थोड़ा size में बड़ा ही रहेगा. इट कांट बी वेरी स्मॉल माइन्यूट नहीं होता, तो यूजुअली जो आपका जपमाला होता है वो वेरी न्यू सीड्स होते हैं जिनको वो लोग निकाल के जल्दी ड्राई कर देते हैं। लेकिन आजकल बहुत स्कैम्स भी है रुद्राक्ष को Yes, लेकर। yes. हाउ डू यू स्पॉट? सो एज ए सेड बिफोर Fake रुद्राक्ष। स्कैन करोगे आपको पता चलेगा कितना सीड्स है उसके अंदर, तो उतना एक्चुअली यू कैन ऑल्सो लुक फॉर स्कैन रिपोर्ट्स भी रहता है कई बार, एंड कई बार आपको सर्टिफाइड certificates भी रुद्राक्ष देते हैं, मिलता yes. है। हाँ, ओके, got it. Okay, let's now talk about one thing which I'm really curious about is Akashic Records. What is it? So Akashic Records कहा जाता है कि we were always born with kind of book which can help you understand who you are, what you are. जैसे हर एक का जो लाइफ पाथ होता है, हर एक का जो लाइफ होता है, they have come through different cycles. They have taken lot many births before this and after this also कुछ births है. तो उसको समझने के लिए कि भाई वाई यू हैव टेकन बर्थ एज दिस पर्सन एंड वेयर यू आर सपोज टू बी हेडेड एंड इस लाइफ में आपको करना क्या है, यू गो टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, दैट इज लाइक योर ओन बुक, आपका बुक कि भाई आपने क्या क्या किया था, आपने क्या क्या अच्छा किया बुरा किया सब कुछ है, आपको इस जन्म में क्यों आपको किस चीज से डर लग रहा है एंड क्यों लग रहा है उसका रिकॉर्ड्स उसमें है। So it's kind of a storage. स्टोरेज, यस, Okay, योर पर्सनल स्टोरेज। but how to access that?
सो देयर आर डिफरेंट वेज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसीज भी एक तरीका है कि यू गेट इन टू इन्वॉल्व विद राइट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी है विच कम्स एट 436, और नो हम्म, तो ऐसे फ्रीक्वेंसीज के साथ आप कंटिन्यूसली अट्यून होगे, यू कैन एक्चुअली गेट नो रिलेटेड टू दैट एंड यू कैन इजीली एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. हम्म. Is it the same as past life regression? पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स इज योर होल रिकॉर्ड. जैसे हम्म, आप बोलोगे कि भाई मेरा लाइब्रेरी किधर है, दैट इज इन आकाशिक रिकॉर्ड्स. बट हम्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज व्हाई यू आर हैविंग सम फियर्स, हम्म, या ये जो आपका कर्मा है आपने क्या कैरी किया इस लाइफ में, हम्म. दैट इज अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन. और इज सेम कि हिप्नोथेरेपी करके आप पास्ट लाइफ रिग्रेस कर आई सकते वुड हो? नॉट से हिप्नोथेरेपी, क्योंकि अगर आपको याद है, इमेजिन हम्म, करो हिप्नोथेरेपी के थ्रू जो आपको कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ व्हाट यू हैव फॉरगॉटन और व्हाट इज इन योर सबकॉन्शियस ट्रॉमा. trauma kind of. हम्म, So he can tell you what is the trauma which is actually creating this kind of illusion that you fear this. हम्म. But how can they reach back to different life? दे कांट. सो दिस इज थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स व्हिच कैन Yes, बी डन. तो उसका yes. प्रैक्टिकल यूज क्या था, किसके लिए लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज करते हैं? So normally जब आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज होता है, that is usually कि भाई what is your life path, आप हम्म, करने क्या आए हो इस लाइफ में. हम्म, लाइक कई बार ऐसा होता है कि पीपल गेट टू कंफ्यूज कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ. हम्म, आई नो कि भाई मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है वेयर शुड ही बी हेडेड, ही इज हम्म, कंफ्यूज और डिप्रेस हो रहा है, हम्म, या ही इज गेटिंग टू ये वायलेंट हो रहा है ना, ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस. देन वी ट्राई टू एक्सेस देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम्म, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट दे आर सपोज टू बी डूइंग, हम्म, व्हाट इज देयर उनका आगे का फ्यूचर क्या है, व्हाट शुड दे बी डूइंग. सी ऐसा नहीं होता है कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि भाई आई शुड बी अ कम्युनिकेटर, दैट मीन्स आई स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड हम्म, गो आउट टू बिकम एन ओरेटर. ओके, हम्म, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन से कम्युनिकेट बेटर, दैट मीन्स यू शुड एक्सप्रेस योर इमोशंस बेटर. तो इट्स ए रिपोजिटरी. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक्सेस किए अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स, यू गेट टू नो आपका प्रीवियस बर्थ्स में क्या हुआ था क्या नहीं, बट दैट आल्सो अफेक्ट्स योर फ्यूचर, राइट? नो, हाउ इट हाउ डजंट. डज इट, हाउ डज इट अफेक्ट. लोग बोलते हैं ना कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ किया था हम्म, जिसका प्रभाव पड़ रहा है हम्म. इस लाइफ में. सो व्हाट इज दैट कनेक्शन? ओके, सो बेसिक मिसकंसेप्शन ये है कि जो आप कैरी कर रहे हो वो आपके हम्म, कर्मास है. ओके, हम्म, क्योंकि हम वी हैव ऑलवेज रेड इन द वेदास कि भाई वी हैव कैरीड आवर कर्मास. ओके, हम्म. तो कर्मास सिर्फ बुरे ही कैरी करते हो, अच्छा कैरी नहीं अच्छा करोगे. भी करते हैं. अच्छा भी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पे आपको अगर अच्छा भी हो रहा है, हम्म, उसके लिए हम लोग कर्मा को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे हैं. हम्म, वी ब्लेम समथिंग व्हेन समथिंग वाज रॉन्ग. व्हाई डोंट वी आल्सो एक्सेप्ट कि भाई मेरा कर्मा अच्छा था, इसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ. हम्म, तो बिकॉज ब्लेम करना आसान हो जाता है. हम्म, व्हेन यू वांट टू ब्लेम समवन, यू डोंट नीड अ रीजन. तो हम्म. कहीं ना कहीं पे हम लोग वो नेगेटिविटी वी आर कैरिंग, दैट्स नॉट फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड्स, और दैट इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट कि इट्स नॉट अ टाइमलाइन. सी, बाय सेइंग दिस यू आर ऑलमोस्ट सेइंग लाइक जो एमसीयू इट्स का अ टाइमलाइन टाइमलाइन. है कि हाँ. भाई मल्टीवर्स का जो टाइमलाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज आई हम्म, हैव एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स. हम्म. वैसा नहीं होता कि यू आर नॉट अच्छा. टेकिंग समथिंग आउट, यू आर जस्ट रीडिंग ये कहाँ से आ रहा है. हम्म, जैसे इफ यू रिमेंबर अपना इसमें व्हाट इज दैट मूवी एवेंजर्स के इसमें उसमें डिफरेंट स्टोन्स आए थे, सेवन स्टोन्स और इन्फिनिटी स्टोन्स थानोस. आए थे. हम्म, ओके, तो जब वो समझाती है वो बोलती है अगर मैंने ये स्टोन आपको दे दिया निकाल के, हम्म, तो ये आगे का टाइमलाइन इसका डिस्टर्ब हो जाएगा. हम्म. दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग विद आकाशिक रिकॉर्ड्स. व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर सीइंग कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टोन्स कौन से लाइफ पाथ से आए. आपके लाइफ का बैलेंस शीट. यस, यस. सो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट मूव दैट स्टोन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हम्म, हम्म, इसलिए ना जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैंडल करते हैं दे आर ट्रेन पीपल. हम्म, कि भाई आप व्हाई डू यू गो टू ट्रेन पीपल इवन फॉर रिकी और इवन इफ फॉर टैरोट, व्हाई डू यू लुक फॉर ट्रेन पीपल, या सही इंसान के लिए क्यों जाते हो. क्योंकि अगर आप सही इंसान के पास नहीं गए, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि भाई ये टाइमलाइंस है, हम्म, अगर आप सही इंसान के पास नहीं जाते वो ट्रिगर करके चेंज कर देते कुछ. हम्म. सो इसका एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स का? नहीं, नहीं होता. एस्ट्रोलॉजी में नहीं यूज होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ना वी डोंट स्पीक ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. हम्म, एस्ट्रोलॉजी में हम ये जरूर बोलते हैं कि हाँ भाई आगे क्या है, हम्म. आपका ग्रह दिशा के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में हम बताते हैं कि भाई व्हाट इज सपोज टू बी हैपनिंग नेक्स्ट, बट वी डोंट स्पीक अबाउट पास्ट लाइफ इन एस्ट्रोलॉजी. तो कार्मिक डेट जो होता है आपका कर्मा, देर इज नो कनेक्शन टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट ना, दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट एग्जैक्टली? सो ये कहाँ पे कार्मिक आता है? कार्मिक डेट्स जो होते हैं वो जैसे 17 नंबर हो गया या 13 हो गया, हम बोलते हैं कि यार ये कार्मिक नंबर्स है, यानी हम्म, आपने कुछ अपने पास कर्मा में आपने कुछ गलत किया है जिसके वजह से यू आर हम्म, कैरिंग सम नेगेटिव थॉट्स.
ओके हम्म, यानी आपने कहीं ना कहीं पे रूल या ब्रेक किया है या तो किसी का दिल तोड़ा है जिसकी वजह से बट देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट इट जस्ट मीन्स दैट यू हैव टू बी मोर नो अवेयर ऑफ दिस एंड यू शुड इम्प्रूव समथिंग इन योर नो बिहेवियर नाउ सो इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव सी अगर आपको भगवान ने ये पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में ये पर्टिकुलर टाइम में भेजा है कुछ तो सोच के भेजा रहेगा इट कांट बी नेगेटिव ऑल नेगेटिव ना वरना आप भगवान क्यों बोलोगे ही कांट बी ऑल फॉरगिविंग मदर एंड फादर इफ ही इज सेंडिंग यू टू नो सफर इन अ लाइफ ओके जैसे 8 नंबर बोलते हैं कि शनि का नंबर है बट हु इज शनि अगर आप देखोगे शनि भगवान इज नॉट अ पर्सन हु ट्रबल्स यू ही इज नॉट अ पर्सन जो आपको सिर्फ दंड देते हैं ही इज नॉट अ जज ही इज अ पर्सन हु हेल्प्स यू आउट अगर आपका जो कर्मा है इफ़ यू आर इमेजिन करो 8 नंबर व्हाट इट डज स्लो डाउन कर देता है स्लो डाउन क्यों करता है ताकि आप बेटर हो सके यू कैन बिकम अ परफेक्शनिस्ट इफ यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट इन अ सर्टेन फील्ड ही इज मेकिंग यू परफेक्शनिस्ट वो तो अच्छा है ना मतलब आपको वो नो व्हाट यू से नो आपको एसेंस दे रहा है जहाँ पे आप नो एक्सपर्ट बन जाते हो किसी फील्ड में हाउ इज दैट बैड यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड हाउ इज दैट बैड दैट्स ऑल्सो गुड ना तो जिसकी वजह से यू कैन यू नो स्टार्ट योर बिजनेस इन दैट फील्ड So, since you have spoken about numbers, let's come to that. ओके So, that leads me to my next question on what is numerology? ओके न्यूमरोलॉजी स्टार्टेड ऑफ वे बैक हमारे इसमें ही था एंड वी वर यू नो कनेक्टिंग डिफरेंट नंबर्स विद डिफरेंट ग्रह okay so as I said 1 number is for sun 2 number is for moon 3 is for Jupiter and no 4 is for Rahu and no 5 is for different kind of ग्रह and 8 is for शनि भगवान तो ऐसे ना हमने कहीं ना कहीं पे नंबर्स को विद ग्रह कनेक्ट किया है एंड बिकॉज ब्रिटिश केम एंड ब्रिटिश लेफ्ट उसमें ना काफ़ी हमारे जो वो भी जो लेके आए थे डिफरेंट नो इजिप्शियन से कुछ लेके आए दे ब्रॉट समथिंग फ्रॉम नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो सब लेके आके अमेलगमेशन हुआ एज न्यूमरोलॉजी Okay, and this is all about numbers. So you say astrology, it is as per Graha. Numerology is also as per As Graha. per Graha, same. But you know, it is as per date of birth. Okay. तो कई बार कैसे होता है हमारे टाइम ऑफ बर्थ में ना देर आर फ्लक्चुएशंस याद नहीं है ना हमने एग्जैक्टली लिखा नहीं है लिखा नहीं है. ओके तो कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट हैव द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ बट हो सकता है ओके तो इफ यू लुक एट माय डेट ऑफ बर्थ आई वाज बोर्न ऑन द 11th of April 1986 ओके एंड दैट टू एट 2:05 AM ओके यानी आप 11 देखोगे विच इज अ मास्टर नंबर यानी आई वाज बोर्न फॉर नो एजुकेशन बोर्न फॉर नो गिविंग ज्ञान ओके एंड आई एम यू नो काइंड ऑफ स्पिरिचुअली ऑलरेडी नो अट्यून टू इट अट्यून टू इट कि मेरे को ना आई कैन इजीली कनेक्ट विद द डिविनिटी ओके नॉट दैट भगवान मेरे को दिखते नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बट यू नो आई एम अट्यून टू जो ये है अकॉल्ट साइंसेस है वो ऑलरेडी मैं अट्यून हो चुका हूँ व्हेन आई केम इनटू द वर्ल्ड आई वाज अट्यून टू इट गिवन एज Already. अ गिफ्ट ओके एंड 11 नंबर्स को ये भी बोलते हैं कि आपको आपने कुछ 5 जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है जिसकी वजह से 10 जन्म में यू हैव बीन गिवन दिस गिफ्ट आप ब्रेक कैसे करते हो 11 नंबर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ डेट yes बर्थ ईयर 11th is the date itself I was born on 11th April okay तो 11 1104 1986 okay तो जो फर्स्ट डेट है एंड प्लस मंथ है दैट गिव्स मी आल्सो गिव्स मी सक्सेस नंबर which is 11 is 1 plus 1 is 2 plus 4 is 6 so 6 as in I will find success in luxury items क्योंकि 6 is the number for Venus कुछ फ्रेमवर्क्स है क्या न्यूमरोलॉजी को लेके जैसे आपने yes अभी Lusho grid ओके सो क्या बताता है ये so Lusho grid can tell you कि भाई आपका ना जो what is it that you should be getting what is it that you are more inclined to जैसे है ना देर आर सर्टन नंबर कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि जैसे 5 and 6 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है यू नो यू कैन गो आउट ऑफ इंडिया एंड यू कैन यू नो स्टे आउट 5 and 6 is usually for no traveling abroad and no coming back but even with 6 in my number like 1986 में 6 आता है okay but I am not inclined to go out क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है so I'm more connected to my you know own home जिसकी वजह से even though I had a chance I didn't go out क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स को कौन संभालेगा okay सो यूज केसेस क्या है न्यूमरोलॉजी का व्हेन शुड यू यूज नॉट यूज So the most important reason for you know going into numerology is to understand better. क्योंकि कई बार क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में ना यू हैव अ बिट ऑफ वेरिएशंस जैसे अगर बंदे का खुद का ग्रह दशा अच्छा नहीं है हाउ कैन ही रीड योर ग्रह दशा करेक्टली अच्छा ओके तो आई मीन इट्स अबाउट टाइम राइट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट टाइम जबकि न्यूमरोलॉजी इट्स ऑल अबाउट नंबर्स इज साइंटिफिकली प्रूवन टू बी मोर एक्यूरेट एंड नो मोर करेक्ट ओके
And number comes from your birth date and birth year or somewhere Yes, else? birth date and birth year. Okay, so everything surrounds around your timing of Yes. the birth and the Date year, of the birth, date date, of the month and birth. year is Okay. most important for Hmm. numerology. And how would you know what's your lucky number? लकी नंबर आपको उसी से मिलता है. Birth date or Yes. birth year से? So till 35, before 35 is your driver number, which is important. Mhm. After 35, it is your life path number, which drives your, which commands कि भाई आप क्या बनोगे या किस साइड में आपको जाना चाहिए. जैसे इफ यू सी माई ड्राइवर नंबर दैट इज 2, हम्म, जबकि मेरा लाइफ पाथ नंबर दैट इज 3. यानी हम्म, मेरा कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन इज माई स्ट्रेंथ. हम्म, तो आई केप्ट ऑन लर्निंग. तो आई स्टार्टेड विद माई स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके आई हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर. तो हम्म, आई डिड माई BA IT, उसके बाद MBA मार्केटिंग किया है मैंने. आफ्टर दैट आई एम currently pursuing MA psychology in IGNOU, and I'm also, I have more than 200 certificates in Udemy, and हम्म, I have, I've kind of, tried to upgrade myself with education and, kind of understanding कि भाई what are the different kind of mystical signs जो मैं देखता हूँ. जैसे आप अगर टाइम देखते हो, सडनली यू सी डबल डबल 11 डबल, आई मीन डबल 1 डबल 1, हम्म. दैट इज एन एंजल नंबर. यानी आपके एंजल आस, नंबर हाँ, क्या होता है ये? ये सो सो दिस ना न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है, हम्म, नंबर्स. ओके. रिपीटेशन ऑफ नंबर्स गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. इट हम्म, गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव टू इमीडिएटली एक्टिवेट इन यू. हम्म. अगर आपने उस टाइम पे उस नंबर पे अगर आपने कुछ एक्टिवेट किया, इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स. Like 11, 22, 33, 44. यस. Okay. सो 11, 22, 33 आर मास्टर नंबर्स बोलते हैं. ओके. हम्म. तो ये नंबर्स आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, एंड दे टेक यू ऑन अ डिफरेंट जर्नी. तो ओके. ये कब आता है, मतलब टाइम के साथ आता है? 22, मतलब मेरा 22 कब आएगा, काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ से या? डेट ऑफ बर्थ से हो गया, हाँ, या हाँ. लाइफ पाथ नंबर से हो गया, या हम्म, ड्राइवर से हो गया. हम्म, किसी भी रीजन से अगर आपका नंबर 11, 22 या 33 आ रहा है, दैट इज वेरी यू स्टॉप. यू हम्म. डोंट ऐड दीज नंबर्स. क्यों? क्योंकि ये मास्टर नंबर्स है. मास्टर को अच्छा. आप ऐड नहीं करते हो. वॉट ओके. यू डू इज यू टेक दैट एज अस एंड यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. कैसे, फॉर एग्जांपल? जैसे अब मेरा डेट ऑफ बर्थ देखो 11 है. 11/04/1986. तो 11 को ना ड्राइवर के लिए मैं ऐड करता हूँ 1+1 दैट इज 2. ओके. बट इफ यू आस्क मी व्हाट इज माय ड्राइविंग थिंग इज माय ऑकल्ट. मेरा What अंडरस्टैंडिंग ऑफ drives ऑकल्ट. you? यस, व्हाट Okay. ड्राइव्स मी इज ऑकल्ट, या मिस्टिकल साइंसेस इज व्हाट ड्राइव्स मी. ओके. उसके बाद अगर आप पूरा ऐड करोगे, टोटल करोगे, इट कम्स टू 3. नंबर 3 विच इज माय लाइफ पाथ नंबर. तो 3 विद ऑकल्ट, यानी knowledge in occult is what drives me to make better of myself. Understood. So before you reach the age of 35 is what drives you, Yes. based on numerology, and then what is the chosen life path for you after Yes. 35 years of age? So till 35 I have learned everything in occult possible. तो one of the questions that you asked me, while we were just sitting, was कि भाई इतना सब कुछ आपने सीखा है. वो इसलिए सीखा क्योंकि मेरा लाइफ पाथ was 2. ओके. या 11 था. ओके. जिसका लाइफ पाथ 11 होता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड ऑकल्ट. आप किसी को कुछ बताने से पहले आप खुद नहीं जानोगे, कैसे बताओगे आप. Okay. Got it. So you have written so many books. Let's talk about them. And you are also trying to be Guinness Book of World Records में आपका Yes. नाम दर्ज करना चाहते हो. Yes, so I want to hold the Guinness Book of World Records for the most number of books published, which is currently held by Ron Hubbard at 1084. So I'm at 467 right now. ये साल का मेरा टारगेट है 500 books, ताकि I can at least be half of what he is. Okay, but even while I say I want to take the Guinness Book of World Record in my name, I respect Ron Hubbard sir, क्योंकि he did it at a very different date and time. क्योंकि he spent 72 years to reach this milestone in his life. And 1084 जब Amazon KDP नहीं था. So for me the biggest advantage was Amazon KDP, क्योंकि I got a very different kind of exposure because of it, and it made my life very simple. क्योंकि आई डोंट नीड टू गो एंड स्टैंड एट अ पब्लिशर हाउस कि भाई मैंने ये बुक लिखा है सर, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप पब्लिश करोगे नहीं करोगे. सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स. सेल्फ पब्लिशिंग बुक्स है ना, Amazon KDP ने बहुत अच्छा आसान कर लिया था मेरे लिए. तो मेरे लिए ना आई हैव रीच 467 बुक्स राइट नाउ. ये साल का मेरा टारगेट 500 है. माई टारगेट वॉज 800 बिफोर, बट आई डोंट यूज AI टू राइट माई बुक्स. तो इसके लिए ना आई कैन नॉट राइट एट दैट स्पीड. Whenever I get time from my daughter, from my own business and other things, I try to sit down and write.
हुँ, कि टाइम कम हो जाता है, बट नो करता हूँ जितना हुँ, हो सकता है। आई हैव ऑलमोस्ट 71 बुक्स राइट नाउ एक्टिव इन माय रीडसी अकाउंट, जहाँ हुँ, पे मैं हर बुक में कुछ ना कुछ लिखता जाता हूँ। तो आई हैव हुँ, टू रिमेंबर कि भाई ये बुक में मैंने क्या लिखा था एंड क्या स्टोरी है। हुँ। आई हैव कंटिन्यू फ्रॉम देयर। Okay, which one is your favorite? So my first book is my favorite because it took 15 years to write that. What's the name of that book? Veni Vidi Vici. In It means I came, I saw, I conquered. okay, and it is about? It is kind of an autobiography. When I didn't know what is an autobiography, I say it's an autobiography because मुझे नहीं पता था क्या है वो. More, it is a ranting of a हुँ, kid who was just trying to grow up, trying to understand कि भाई how do I express myself. सो ऐसे कौन से बुक्स हैं जो आपको इंस्पायर किए हैं? So जो अपना ये है Who Moved My Cheese. चेंज So Who Moved My Cheese, भाई. नो, नो चेंज पे है ना ये हाँ, बुक yes. ऑन So someone who has moved my cheese, and what does it signify? हुँ, It signifies its time has passed, and this is a different kind of aspiration or something different which is going on. हुँ, हुँ, And also The Alchemist. It's a अल्केमिस्ट brilliant book, and it kind of changed my outlook. हुँ, कि भाई what I'm doing, why I'm doing it. What am I trying to change? I'm not trying या to change ट्रू water to gold or no water to something else. I'm not trying to materialize something. What I'm doing is I'm just converting the thought process behind कि भाई ये पानी नहीं है. This is a healing process. When you drink this water, it will cleanse you, it will heal you, and it will give you better life. Got it, got it. So you have also decades of experience into marketing. Yes. So now tell me, someone who is starting journey on healing process or energy healing, so उसका marketing वो कैसे करे? Okay. So when you're trying to start with healing process, you have to first understand why does a person need healing. जैसे what is the target audience for healers? Okay. अगर आप सोचोगे, you first think कि भाई जो बीमार है, बट वैसा नहीं है. हम्म, बीमारी की वजह से कोई हीलिंग की वजह से नहीं जाता है. हम्म, हीलिंग की वजह से तब जाता है जब उन्हें लगता है कि हम्म, हाँ भाई ये कुछ गलत है. यानी समवन हु इज अवेयर दैट दे आर बीमार इज द टारगेट ऑडियंस फॉर योर हीलिंग प्रोसेस. ओके, तो नॉर्मली कैसे हीलर्स क्या करते हैं, दे स्पीक अबाउट नेगेटिव टर्म्स. हम्म, ओके, कि भाई इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, अरे भाई आई विल गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाई शुड आई कम टू हीलर. yeah, ओके, got it. तो कहीं न कहीं पे ना वो जो वर्ड ये भी होता है, वो भी यूसेज एक्चुअली मैटर्स. सो आई एम डूइंग एमए साइकोलॉजी. सो देयर वाज़ अ वेरी एक्सीलेंट रिसर्च पेपर व्हिच आई रेड रिसेंटली, व्हिच स्पोक अबाउट हाउ अ पर्सन रिसर्चर, हाउ ही फ्रोज वाटर. ओके, व्हाट ही डिड वाज, उसने एक ग्लास में पानी लिया, ही यूज्ड टू अटर गुड वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, एंड देन वो वर्ड्स को वो बोलता रहा कंटिन्यूअसली पानी में, एंड उसको उसने फ्रीज कर दिया. हम्म, एंड देन ही ऑब्जर्व्ड दैट फ्रोजन आइस अंडर माइक्रोस्कोप. अच्छा. एंड ही ऑब्जर्व्ड कि जिस वर्ड्स जो उसने वर्ड्स यूज किया था इन एंड ही फ्रोज द वाटर फॉर पॉजिटिविटी, इट स्टार्टेड शोइंग हीलिंग प्रॉपर्टीज. जबकि वो वाटर जो उसमें, Because words carry यस, that vibration. यस, इवन व्हाट यू से अबाउट योरसेल्फ काइंड इफेक्टिव. हाँ, वो अगर सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ यस, टॉक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो में आता कई है. बार ना हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई अच्छा बोला करो. हम्म, अच्छा क्यों बोला करो, ताकि आप अच्छा सोच सको. आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा बोलोगे, तब आपके आसपास का जो एनर्जी रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव. बट आपको लगता है ये पीआर चाहिए फॉर ऑल दिस एनर्जी हीलिंग प्रोसेस एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप स्केप्टिक्स को कैसे समझाओगे ये? ओके, आई विल एक्सप्लेन स्केप्टिक्स एज वेल. स्केप्टिक्स वो है जिनका नेगेटिव नहीं है. हम्म, दे डोंट अंडरस्टैंड. हम्म, जिस बंदे को समझ में नहीं आता है, आप उसे स्केप्टिक नहीं बोल सकते. जैसे आई हैव अ 6-year-old डॉटर. ओके, हम्म, व्हेन शी कम्स एंड आस्क मी, अगर आपकी बच्चे हैं, दे कम एंड आस्क यू कि पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप भगवान को हम्म, प्रे क्यों कर रहे हो, आप हम्म, बोलो कि ये स्केप्टिक है. नहीं नहीं, ना, नहीं. आप स्केप्टिक नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता. इफ यू हम्म, कैन इफ यू कांट एक्सप्लेन what you are doing to a 3-year-old or your 2-year daughter हम्म, or son, how can you explain to a skeptic? हम्म, हम्म. क्योंकि स्केप्टिक इज नॉट ए पर्सन हु इज नेगेटिव. जैसे ना अगर आप, इग्नोरेंट है आप बोल रहे यस, हो. अगर आप देखोगे, भगवान के आपने ये भी देखे रहेंगे मूवीज जिसमें बोलते हैं कि भाई मेरा भगवान को जो सबसे ज्यादा पसंद भक्त है, वो वही भक्त है जो जिसको भरोसा नहीं है भगवान पे. हम्म, हम्म, क्योंकि जहाँ पे भरोसा नहीं है, वहां पे आप भरोसा जगाओगे, वो ही सबसे ज्यादा आपका सपोर्टिव बन जाएगा. हम्म, ही विल बिकम योर बिगेस्ट भक्त. हम्म, अगर आप समझा नहीं सकते हो, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक राइट हम्म. नाउ. बट देयर आर सम पीपल जो डिस्कार्ड ही कर देते हैं, ये तो कुछ नहीं है. ठीक है ना, सी, like if you had seen me before हम्म, 2000, I would also have discarded mostly occult. हम्म, क्यों? क्योंकि it was given to me, gifted to me.
जो मुझे विरासत में दिया गया, which is free of cost to me, how will I trust it if I don't have a life experience which has changed my outlook towards it? So how do you see now this phase of your life? This phase of my life I see as kind of not as an enlightened person. I don't say that I'm a guru कुछ बन गया हूँ. नहीं, I am still a skeptic. अच्छा. Okay. नहीं, because see, as I said before, skeptic is a person who doesn't understand everything. There's so much of ज्ञान in our Vedas itself. हमें जो पता है हमने पूरा पढ़ ही नहीं सकते. जैसे अगर आप देखोगे वेदास के इसमें, तो देयर इज अ पर्सन हु स्टार्टेड रीडिंग वेदास, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया. उसको ब्रह्मा जी ने बहुत लंबा लाइफ भी दिया, बट ही हैज, एज पर वेदास, ही इज स्टिल लर्निंग वेदास. जिस बंदे ने इतना लाइफ जीकर भी पढ़ नहीं पाया, एक जन्म में मैं क्या कर लूँ? ओके, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. ओके, तो आई कांट गो आउट एंड से कि भाई मैंने सारे वेद पढ़ लिए, मैं सारे वेद पुराण जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑकल्ट, बिकॉज दैट विल बी बुलशिट, वेरी ऑनेस्टली. How do you see now, because you are in the field of marketing also, use of AI in spiritual work and energy healing process? AI can replace. This is a new debate these days. No, see, I'll explain something. AI is a tool. Yeah. जहाँ पे आप आप बोलोगे कि भाई AI कैन इट रिपेयर माई कार, इट कांट. It can't. क्योंकि AI कैन probably help you make it faster, but AI cannot do what a person can do. AI को सिखाना पड़ता है. लाइक जेमिनी या अगर आपने सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया, आपको बहुत कुछ दे सकता है. हाँ, वो बहुत कुछ में कुछ मतलब भी नहीं होता है कई बार. Even to say it can help you in your work, spiritual Yes. work and energy Yes. work. If you have the expertise But in आजकल that, कैसे यूज करते हैं? Healers यूज करते हैं AI? कई बार यूज होता है, क्योंकि एज आई सेड कोरा में जैसे कई बार यू सी अ लॉट ऑफ वेरिएड क्वेश्चन. ओके, नॉट एवरी टाइम कैन यू एक्चुअली टाइप एवरीथिंग. आप जनरेट करते हो आप रिप्लाईज. जनरेट करते हो, एंड बट उसमें भी इन द प्रॉम्प्ट यू हैव टू गिव द राइट काइंड ऑफ कंडीशंस, जो कीवर्ड्स बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग में, कि भाई सही कीवर्ड्स आपने दिया, सही दिशा दी है, तो वो प्रॉम्प्ट सही करेगा, आपको सही आंसर देगा, जिसके वजह से द अदर पर्सन कैन गेट द काइंड ऑफ राइट काइंड ऑफ फीडबैक एंड ही कैन इम्प्रूव फ्रॉम देयर. आप ग्रामर चेक करना नहीं पड़ेगा टाइम वेस्ट Yes, करके एंड yes. ऑल दोज थिंग्स. बट एआई से आपने देखा होगा आजकल कुंडली जनरेट होता है. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स. वो Yes. सही है, गलत है, सही एज आई करता है. सेड, अगर आपका ज्ञान सही है, जैसे आपका प्रॉम्प्ट में आपने सही प्रॉम्प्ट्स के साथ जनरेट किया, AI कैन गिव अ वेरी गुड काइंड ऑफ जैसे अगर आप बोलोगे कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आई वांट टू स्केल माय बिजनेस, AI कैन बी अ वेरी गुड टूल टू स्केल योर बिजनेस. क्यों? क्योंकि आप जो 10 बंदों को बिठाकर आप जो करवाओगे, वो AI आपको मल्टीप्लाई करके देगा. तो स्केलिंग अप के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. बट अगर आपका बेस ऑफ बिजनेस, जिसमें आपने मार्केटिंग आपने गड़बड़ किया है, सेल्स का फनल्स गलत है, एंड इवन योर मार्केटिंग का जो प्लान्स रन हो रहा है वो गलत है, और आपका जो प्रोडक्ट्स लाइनेज है उसमें कंडीशंस या उसमें डिटेलिंग गलत है, तो आपको AI जो जनरेट करेगा वो बहुत ही बड़ा क्रैप कर देगा वो, क्योंकि ये स्केल्ड अप. सी, AI इज नथिंग बट इट कैन हेल्प यू स्केल अप. बट अगर आपका बेस गलत है, तो आपका जो AI डेवलप करेगा वो और बड़े में दिखाएगा कि भाई ये बुलशिट है. फिर क्या करोगे आप? Got it, got it. So how can people and our viewers and listeners can follow you, follow your work? There's so many things that you're doing. Okay, so first and the foremost location is Google itself. अगर आप मुझे Google पे सर्च करोगे, you will find almost 70 different backlinks to my name, and जहाँ से you can see different things which I am currently involved in and currently developing in. तो I have also launched my own website ft-cm.com, जिसमें मेरे सारे रेगुलर बुक्स अपडेट होते रहते हैं. We'll put that in the description. Yes, please. And thank you so much. Pleasure to host you on the show. Thank you It so was much for really having me. insightful. I mean, discussed so many topics, and I'm sure it was very helpful for our listeners and viewers. Thank you so much, Krishna Mohan sir. Thank you so much. Thank you for having me here.